एसएस टोटल इक्वल है एसएस बिटवीन प्लस एसएस विद इन। टोटल का दोनों को रिजल्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो एसएस टोटल आएगा। 8.4 मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर। In one way ANOVA, capital R square made the effect size. It suffers one possible limitation. It does not indicate which group may be the responsible for a significant effect. All data significant R2 and F statistic say is that the means for the groups are unlikely to have been sampled from a single hat of means. Unfortunately, there is no simple unequivocal statistical solution to the problem of comparing for different levels of an ANOVA factor. A number of statistical methods have been developed to test for the difference in means among the levels of an ANOVA factor. Collectively, these are known as multiple comparison procedure (MCPs) or sometimes as post hoc मल्टीपल कंपैरिजन को या पोस्ट होक इनका अदर नेम है। एमसीपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। आफ्टर द फैक्ट टेस्ट these tests should be used regarded as an afterthought than a rigorous examination of pre-specified hypotheses. Most of the multiple comparison methods are meant to pair-wise comparisons of group means to determine which are significantly from which others. The main purpose of the most multiple comparison procedure is to control the overall significance level for some set of interferences performed as a follow-up to ANOVA. This overall significance level is the probability conditional on all the null hypotheses being tested being true, of rejecting at least one of them, or equivalently of having at least one confidence interval not include the true value. The various methods differ in how well they properly control the overall significance level and in their relative power. Commonly used methods and their relative power is given below. Bonferroni, it is extremely general and simple but often not powerful. Tukey's, it is the best of all possible pairwise comparisons when sample size are unequal or confidence intervals are needed. It is also very good even with equal sample sizes without confidence intervals. Stepdom के बारे में कहते हैं it is the most powerful for all possible pairwise comparisons when sample size are equal. Tenets, it is suitable for comparing one sample to each of the others but not comparing the others to each other. HSU's MCB, it compares each mean to the best of the other means. Safi's, it is suitable for unplanned contrast among set of means. ये डिफरेंट व्यू पॉइंट है मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है, हमने 4 मेजर टॉपिक आज क्लियर किए हैं। इसके बारे में भी छोटा सा ओवरव्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो अभी क्लियर करते हैं, नहीं तो हम यूनिट 9 की तरफ फॉरवर्ड स्टडी स्टार्ट करेंगे। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है व्हेन विल यूज नोवा इन योर रिसर्च। नोवा हम कब यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा पब्लिक चैट में? $60 यूजर्स अवेलेबल। अनोवा क्या है? जय काली लिखे थे, अनोवा की एब्रीवेशन क्या है?
टू टेस्ट मोर देन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अनोवा की एब्रीवेशन टेस्टिंग टूल विद वेरिएबल्स। अनोवा की एब्रीवेशन भी देखनी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग अनोवा। अनोवा को जो हमने ऊपर लॉजिक स्टडी किया था जो फार्मूले के साथ, वो इसकी लॉजिक है। राइट ऑन शॉर्ट नोट ऑन वन वे अनोवा। वन वे अनोवा क्या है वो हमने देखा, उसके अंदर क्या इसकी ट्रीटमेंट है, जो हमने दो डिफरेंट बिटवीन ट्रीटमेंट, विद इन ट्रीटमेंट, जिसमें एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिहाज से थी और एक बाय चांस। व्हाट आर मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स, जो अभी हमने स्टडी किया। व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ मल्टीपल कंपैरिजन प्रोसीजर्स, इनके बेसिक पर्पस क्या है। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं, मैंने इन्हीं क्वेश्चंस में पूछना है जब 1 से लेके 8 तक जो हो चुकी है अभी तक। Activity suppose you have to see the difference between 3 groups, discuss with your colleagues and select appropriate statistical tests. 2. In your study, the treatment you use had no effect. What will the F ratio? जहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा वहां पे F रेशियो क्या होगी। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट चैप्टर है यूनिट 8, इसलिए एक शॉर्ट सी रिवीजन दे देते ताकि अभी हमें अगेन रिकॉल हो जाए कि हमने अभी तक इसमें क्या स्टडी किया है। इसमें हमने अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस स्टडी किया है, ठीक है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन दिया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता क्या है, ये क्यों करते हैं, मोर देन 2, 3 और 4 ग्रुप्स को स्टडी करने के लिए। फिर हमने इसकी लॉजिक अनोवा देखी जिसमें हमने टेम्परेचर सप्लाई किए 50, 70 और 90 और ये 5 फिगर्स की वैल्यू थी, इनके डिफरेंट मीन आए 1, 4, 1। फिर इसके ट्रीटमेंट की जो लॉजिक है किस तरह से डिफरेंस हो सकती है, दो, बिटवीन ट्रीटमेंट और विद इन ट्रीटमेंट। एक ट्रीटमेंट इफेक्ट्स देखिए हमने, एक बाय चांस है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से और एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से। फिर विद इन ट्रीटमेंट की हमने एक डायग्राम देखी, टोटल वेरिएबिलिटी कैसे आएगी, जो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, बिटवीन ट्रीटमेंट वेरिएंस में और विद इन ट्रीटमेंट वेरिएंस में। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टडी किया अनोवा के लिए, इसके लिए एस एफ रेशियो आती है। इसमें हमने देखा कि 1 रेशियो आएगी जब कोई इफेक्ट नहीं होगा, जब इफेक्ट होगा तो मोर देन वैल्यू आएगी। फिर हमने स्टडी की कि एग्जांपल इंटरप्रिटेशन किस तरह, अगर एफ की वैल्यू 2 है उसको हमने वो जो इफेक्ट है वो 2 टाइम एफ रेशियो से, या जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आई है उससे सिग्निफिकेंट इफेक्ट से 2 टाइम ज्यादा है। अगर 10 आती है तो उसके अंदर 10 टाइम ज्यादा है। फिर वन वे अनोवा की लॉजिक और प्रोसीजर देखिए। वन वे अनोवा में के की वैल्यू क्या है, वन वे अनोवा क्या है, और इसमें हमने ये टोटल ग्रुप मीन्स लिए, इसकी वैल्यूज देखी। फिर एग्जाम्पशन देखी कि वन वे अनोवा के लिए क्या एग्जाम्पशन, 3 एग्जाम्पशन होनी चाहिए वन वे अनोवा में, कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपका सैंपल, नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होनी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए डेटा, और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, जितने भी ग्रुप के वेरिएंस आएंगे वो होमोजीनियस होने चाहिए। लॉजिक बिहाइंड वन वे अनोवा, ये इसका टेस्ट है कि लॉजिक, अगर आपने एक एरर देखा कि मैग्नीट्यूड टेस्ट करना है, वो फर्स्ट स्टेज में 5% है, नेक्स्ट में डेटे में देखेंगे तो 10% आएगा, थर्ड में देखें तो 15%। तो इसका एक फार्मूला हमने देखा k इंटू k1 माइनस 1/2। k क्या, नंबर ऑफ मीन्स लेंगे हम इसके एरर्स को कंपेयर करने के लिए, और ये सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो अल्फा है इसका हमने देखना टी टेस्ट में सिलेक्ट करने और रिजेक्ट करने के लिए, जो हमने एरर को कंपेयर करने के लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखी होती है। और प्रोसीजर ऑफ अनोवा, एसएस टोटल का प्रोसीजर ये हमने स्टडी किया। बिटवीन ट्रीटमेंट और विद इन ट्रीटमेंट, ये सारे फॉर्मूले देखने के बाद जो लास्ट में आता है कि एसएस टोटल इक्वल है बिटवीन प्लस विद इन, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एसएस टोटल आ जाएगा। मल्टीपल